All right, India Today has some exclusive footage of the main accused here, Sanjay Roy, on the night of the deadly rape and murder. It's our exclusive information that we have. We've accessed the CCTV footage here showing Sanjay Roy entering the hospital premises at 4:03 a.m. Well, this is what you will see in depth as you see at this point in this video here, that you see Sanjay Roy walking into the hospital premises at 4:03 a.m. 34 seconds in the CCTV footage. We're looking at him walking into the hospital premises right after the rape and murder. The accused also comes out of the seminar hall, and that's the footage that we have here showing you clear movements of Sanjay Roy. This is a big update. Certainly it gives a lot of insights to the CBI who is investigating the case to suggest that Sanjay Roy walked in at what time exactly, he spent how much time inside the hospital premises, and he walked out alone. So all of this kind of sets the record straight, and it kind of gives some perspective to the CBI's investigation that we've had some portions of it that we've accessed, and here the CCTV footage almost corroborating the pointers we got of the CBI report in the top court. So let me take you through. We hear through the CCTV footage, 4:32 a.m. is when he exited. So to take you through the order here, 4:03 a.m. he walks in, and he steps out by 4:32 a.m. Looking at the CCTV camera, he goes back towards the seminar hall. Sanjay Roy realizes that there is a CCTV camera. He's even looking at the cameras there, realizing that there's a CCTV camera. And in this part, we're looking at Sanjay Roy still having a helmet in his hand and a Bluetooth set that eventually went missing, but he had the Bluetooth set and he had his helmet in the hand. Later, when Sanjay Roy was arrested, the Bluetooth, which was already sealed, automatically connected with his phone. Now, the CCTV footage bringing a huge dimension, a huge development in this case to show where this investigation could lead towards. Arvind Ojha with this exclusive update for us. Arvind, please give us more on the CCTV footage we have. यहाँ पर इंडिया टुडे पे पहली बार CCTV फुटेज दिखाई दे रहा है संजय रॉय चल के अंदर जाते हुए, और 35 मिनट से थोड़ा ज्यादा उसके बाद वो बाहर भी आ रहा है और वो रियलाइज भी करता है कि एक CCTV फुटेज है, शायद उसको कैप्चर कर रहा है. क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस फुटेज? बिल्कुल, देखिए, और ये इंडिया टुडे पर मेगा एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक हम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 9 अगस्त के बाद से अलग अलग थ्योरीज चल रही है. सीबीआई भी इस मामले की जांच करी, और फर्स्ट टाइम इंडिया टुडे जो संजय राय अक्यूज्ड है उसकी उस रात, जिस रात ये पूरा इंसिडेंट हुआ अस्पताल में, आरजीकर हॉस्पिटल में, उसकी मौजूदगी का एविडेंस हम ये दिखा रहे हैं, जो हमने एक्सेस किया है CCTV ग्रैब, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो अक्यूज्ड संजय रॉय है वो आरजीकर अस्पताल के अंदर वॉक करता हुआ दिखाई देता है. और ये CCTV इमेज ठीक सेमिनार जो हॉल है उसके पास कॉरिडोर की है, जहां पर संजय रॉय टी-शर्ट पहना हुआ है, जींस पहना हुआ है, उसके हाथ में हेलमेट है, और ये हेलमेट कोलकाता पुलिस के जो जवान हैं वो यूज करते हैं. हाथ में हेलमेट है, और उसके बाद फिर वो वहां से वॉक करते हुए सेमिनार हॉल की तरफ जाता है. सेमिनार हॉल में वो जाता है, उसके बाद एंट्री करता है, वहां पर जो क्राइम है उसको अंजाम देता है. उसके बाद जब वो वापस लौटता है तो एक ब्लूटूथ उसका स्पॉट पर, क्राइम सीन पर छूट गया था, लेकिन संजय रॉय जब वापस आता है तो उसे पता चल जाता है कि वो CCTV कैमरे में कैद हो रहा है. जिसके बाद वो कुछ सेकंड के लिए वापस जाता है बैक साइड सेमिनार हॉल की तरफ, और उसके बाद फिर वापस तेजी से CCTV कैमरे में दिखाई दे रहा है कि वो तेजी से चला जा रहा है. तो ये फर्स्ट टाइम ये एस्टेब्लिश हम कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग थ्योरी चल रही है. कोलकाता पुलिस ने पूरी तरह से जांच की थी, और सेमिनार जो हॉल है उसके सामने तो कोई CCTV नहीं है, लेकिन कॉरिडोर में पूरा CCTV कैमरा लगा हुआ है. उस CCTV में ये जो संजय रॉय है ये कैप्चर हुआ है, और फर्स्ट टाइम क्राइम सीन के आसपास संजय रॉय की जो मौजूदगी है उसका क्लिंचिंग एविडेंस हम इंडिया टुडे पर दिखा रहे हैं कि देखिए, ये जो CCTV जो कैमरे से में कैप्चर ये तस्वीर है, ये संजय रॉय की है, और संजय रॉय उस रात 9 अगस्त को हॉस्पिटल, आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था. उसने जो विक्टिम है उसका रेप किया, उसका मर्डर किया, और उसके बाद
वो वापस वहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो सभी एक्सेस किए गए हैं। जो ये टाइमिंग है उस टाइमिंग के आसपास कोई भी सेमिनार हॉल के आसपास नहीं गया था। ये जो सीसीटीवी है, इसी सीसीटीवी के आधार पर जो कोलकाता पुलिस है, कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को जीरो इन किया था और उसके बाद अरेस्ट किया था। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्लिंचिंग एविडेंस है और चाहे सीबीआई इस मामले की जांच करे। ये जो सीसीटीवी है जिसमें संजय रॉय की मूवमेंट दिखाई दे रही है सेमिनार हॉल के आसपास, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि जब संजय रॉय सीसीटीवी में फर्स्ट टाइम एंट्री करते हुए दिखाई देता है उस वक्त टी शर्ट पहना होता है, जींस पहना होता है, हाथ में हेलमेट होता है और गले पर ब्लूटूथ का वायर होता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो ब्लूटूथ का वायर गायब होता है और वो वही ब्लूटूथ क्राइम सीन पर मिलता है, जिसके बाद ब्लूटूथ के जरिए और कुछ इन्वेस्टिगेशन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की इन्वेस्टिगेशन है जो आने वाले वक्त में इंडिया टुडे उसका भी खुलासा करेगा, उसके जरिए संजय रॉय को अरेस्ट किया गया था। लेकिन जब से ये इंसिडेंट हुआ है अलग अलग थ्योरी चल रही है, जिसके बाद इंडिया टुडे की टीम ने कोलकाता में काफी टाइम तक इन्वेस्टिगेट किया और हम एक्सेस कर पाए सीसीटीवी को, जिसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि संजय रॉय 9 अगस्त को 4 बजे के आसपास उस आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था और बाकायदा स्पीड से जो उसका जेस्चर पोस्चर था वो साफ साफ ये दर्शाता है कि वो किसी चीज की तलाश में था और कई कमरों को उसने झांका, उसके बाद सेमिनार हॉल के अंदर से जाके जो रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। मेडिकल कॉलेज जी अरविंद ओझा जी, जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि दैट संजय रॉय वॉकड इन टू द हॉस्पिटल विद एन इंटेंशन टू फाइंड हिज victim. He literally walked into the hospital with an intention to commit a crime. He goes into the hospital, almost scans different rooms of that hospital and tries to find some person that he can attack and rape possibly, because clearly here, as per the CBI investigation, some of the tests also reveal that this man was a pervert, that he has animal instincts, and he came in drunk in an inebriated state, walks in, tried to scan different rooms, and then walks into the seminar hall, finds this girl and carries out the crime. All the more important that he walks in and then walks out noticing that there's a CCTV camera right above him, gets a little rattled and then rushes back in to see if he can sort of change the course of his movement and see if he can take another exit. Probably did not find another exit and came back through the same route, but this time he rushed out. And the Bluetooth that was with him at that point when he was walking out the first time, the second time when he was rushing out, is seen missing. So clearly the CCTV cameras has rattled this man, Sanjay Roy, enough to have lost his balance, dropped his Bluetooth, and him rushing out has eventually led to the police finally tracking him down, because the Bluetooth is said to be one of the main reasons and indicators after which Sanjay Roy was arrested, because the Bluetooth, the police sort of synced with Sanjay Roy. Among the many other suspects, Sanjay Roy was just one of the suspects. They never imagined that it could be him. But when the police was trying to investigate, they checked and synced the Bluetooth with multiple people, and it was connected with Sanjay Roy's. This CCTV footage right here, exclusive on India Today, that Arvind Oja brings to us, really gives a whole new dimension and depth to the CBI's investigation and the course of it. Arvind Oja, यहाँ पर जो Bluetooth है, जो पहली बार वो अंदर जाता है उसके पास Bluetooth है, फिर बाहर जब आता है पहली बार Bluetooth है, मगर जब वो सीसीटीवी देखा और वापस हड़बड़ी में अंदर गया और फिर वापस आया, वो ब्लूटूथ मिसिंग रहा और वही ब्लूटूथ पुलिस को एक बड़ी लीड के जैसे आया और उसको अरेस्ट किया गया। इसके बारे में कुछ बताइए और बताइए कि वो अंदर आया एक इंटेंशन के साथ कि क्राइम करना ही है, एक विक्टिम ढूंढ रहा था वो। जी बिल्कुल, देखिए इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया टुडे पर ये जो क्लिंचिंग एविडेंस है जो हम फर्स्ट टाइम शो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है और अलग अलग रिएक्शन चल रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग थ्योरी भी चल रही है। इसलिए हम फर्स्ट टाइम आपको ये एविडेंस दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी से सिर्फ ये एस्टेब्लिश नहीं होता है कि अक्यूज उस रात आरजीकर हॉस्पिटल में मौजूद था, बल्कि ये जो सीसीटीवी है, इसके आसपास का जो सीसीटीवी है, इसमें एक एविडेंस भी है। इसमें एविडेंस ये है कि जो अक्यूज्ड है वो
अगर आप देखो तो उसमें बकायदा जीन्स टी शर्ट पहना हुआ, उसने जीन्स पहनी हुई है, हाथ में जो हेलमेट है वो कोलकाता पुलिस इस्तेमाल करती है, वो वाला हेलमेट है, और वो भी उससे भी आइडेंटिफाई किया गया था अक्यूज को, जो सोर्सेज ने हमें बताया। हाथ में हेलमेट है, गले में ब्लूटूथ है, और उसके बाद वो सेमिनार हॉल की तरफ वो जाता है। और जब सेमिनार हॉल की तरफ, मैंने खुद ने आपको बताऊं, इंडिया टुडे की टीम ने वो सीसीटीवी फुटेज बारीकी से देखा है, और उसके बाद हमें फिर ये जो क्लिंचिंग एविडेंस है वो मिला है, और उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो संजय रॉय है वो एंट्री करता है और पूरा जो कमरे हैं उसको वो देखता है, यानी किसी चीज की वो तलाश कर रहा था। उसके बाद वो सेमिनार हॉल की तरफ हल्का सा आगे बढ़ता है, फिर भी बगल में जो कमरे हैं उसमें वो दरवाजा खोलकर देखता है, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। सेमिनार हॉल का दरवाजा था वो खुला हुआ था, जो विक्टिम थी वो रेड कलर का जो कंबल है वो ओढ़े हुई थी। उसके बाद वो जाता है वहां पर, और उसके बाद स्मोदरिंग करता है। इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, उसके इंटरोगेशन की डिटेल्स भी इंडिया टुडे के पास मौजूद है नबीला। उसमें बकायदा जो सबसे पहले लड़की सोती है, जो संजय रॉय ने इंटरोगेशन में बताया है कि वो सबसे पहले लड़की का मुंह दबाता है, चूंकि वो अनकॉन्शियस पहले से थी, सो रही थी, मुंह दबाता है उसका, और उसके बाद गला दबाता है। उसके बाद लड़की जब बेहोश हो जाती है, उसके बाद फिर उसका रेप करता है, और उसके बाद उसका मर्डर करता है। और उसके बाद वो कपड़े पहन करके जब वापस लौटता है तो संजय रॉय को ये पता चलता है कि वो तो सीसीटीवी में कैद हो रहा है। उसके बाद वो कुछ मिनट के लिए वापस जाता है, और उसके बाद स्पीड से वो आता है, लेकिन ये सब सारी एक्टिविटी सीसीटीवी में कैद हो गई थी। तो सिर्फ ये जो सीसीटीवी है, ये सिर्फ इसका एविडेंस नहीं है कि वो हॉस्पिटल में मौजूद था, बल्कि ये एविडेंस ये भी है कि वो आता है हेलमेट पहन के, टी शर्ट पहन के, जींस पहन के, और गले में उसके जो ब्लूटूथ डिवाइस था वो लटका हुआ था। लेकिन जब वो वापस आता है वो ब्लूटूथ नहीं था, वो ब्लूटूथ क्राइम सीन पर वो छोड़ गया था, और वही रिकवर हुआ था। क्योंकि जब ब्लूटूथ रिकवर हुआ तो कोलकाता पुलिस ने जो विक्टिम के मदर फादर है उनसे भी पूछा था कि क्या ये ब्लूटूथ आपका है, जिसके बाद जो विक्टिम की फैमिली है उन्होंने डिनाई किया। उसके बाद फिर ब्लूटूथ और कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी हम आपको आने वक्त में खुलासा करेंगे कि कैसे ये अक्यूज पकड़ा गया, इसका कंडक्ट किया था, 8 और 9 अगस्त को ये कहां गया, ये सारी डिटेल इंडिया टुडे के पास मौजूद है। लेकिन हम सबसे पहले ये एविडेंस दिखा रहे हैं, ये क्लिंचिंग एविडेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि 9 अगस्त से लगातार ये डिबेट चल रही है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो संजय रॉय है, जो अक्यूज्ड है, प्राइम अक्यूज्ड है, जो उस आर्जिकल हॉस्पिटल में मौजूद था, फर्स्ट टाइम अपने व्यूअर को वो एविडेंस दिखाएं। और आपको ये भी बता दें कि हमने इसका फेस ब्लर किया है, क्योंकि इसकी टीआईपी भी होनी है, इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट की तरह हमने इसका फेस ब्लर किया हुआ है। लेकिन ये एस्टैब्लिश्ड होता है कि संजय रॉय आर्जिकल हॉस्पिटल में 9 अगस्त को वहां पर मौजूद था। उसने जो रेप और मर्डर जो विक्टिम डॉक्टर है उसका किया, उसके बाद वो वहां से निकल कर गया था। और ये भी बता दूं कि ये जो पूरा कॉरिडोर है उसके आसपास सेमिनार हॉल के सामने फ्रंट पर तो नहीं लगा है, लेकिन आसपास कई सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिसमें अगर कोई सेमिनार हॉल की तरफ जाता है तो उसकी मूवमेंट बहुत आसानी से टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जो एस्टैब्लिश्ड वो आसानी से, चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो कर सकती है। इसलिए जो अक्यूज्ड है, और जो इंडिया टुडे ने पहले बताया कि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये साफ होता है कि अक्यूज्ड एक था, वो संजय रॉय था, उसने रेप और मर्डर किया। और ये जो तस्वीरें हैं ये एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में जाएंगी, सिर्फ इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि संजय रॉय उस हॉस्पिटल में मौजूद था, क्योंकि एक एविडेंस के तौर पर भी जाएंगी कि देखिए अक्यूज इस तरह से आता है, उसके पास ब्लूटूथ था, जाते हुए दिखाई देता है, ये बकायदा जज को दिखाया जाएगा। और जब वो वापस आ रहा था तो उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। और आपको ये बताऊं, जो इंडिया टुडे की टीम ने पूरा क्लियरली सीसीटीवी मैंने खुद ने देखा है, उसमें जो उसका संजय रॉय का जो हाव भाव था वो काफी ज्यादा चौकन्ना था, काफी चौंक रहा था, और हर कमरे को वो तलाश रहा था। कोई भी टारगेट उसका हो सकता था, ये भी जानकारी हमें मिली है। तो हमने
प्रॉपर सीसीटीवी को स्कैन किया, उसके बाद हमारे हाथ ये सीसीटीवी का इमेज लगा, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी भी था इंडिया टुडे पर हमें दिखाना, क्योंकि लगातार अलग अलग जो थ्योरी है वो अपने हिसाब से सोशल मीडिया और अलग जगह पर चल रही है, क्योंकि एक बड़ा इंसिडेंट है, इससे पूरा देश आक्रोशित है, गुस्से में है, इसलिए फर्स्ट टाइम हम ये इंडिया टुडे पर ये सीसीटीवी इमेज दिखा रहे हैं।